Hello everyone, this is Dr. Prachi Jain from ABES Engineering College, Ghaziabad. Today our topic of discussion is beta and gamma function. These are two special type of functions. Gamma function is defined as gamma n equals to 0 to infinitive e to the power minus x, x to the power n minus 1, where n is always positive. So using this integral, we can easily evaluate many integrals. The property of this integrals, gamma 1 is always 1. Gamma n plus 1 equals to n gamma n. For example, अगर हमको gamma 4 निकालना है तो हम क्या करेंगे? We will write it as 3 gamma 3 because we can write it as gamma 3 plus 1. So it can be written gamma 3. Again, it can be written as gamma 2 plus 1. So 2 gamma 2. Again, gamma 2 can be written as 1 gamma 1. So 1 gamma 1. Gamma 1 is always 1. So 3 into 2 into 1. Or you can say this is factorial 3 also. इसलिए हमने कहा है कि गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n एंड गामा 1 बाई 2 इक्वल्स टू फैक्टोरियल पाई। हम लोग क्यों इसको फैक्टोरियल n हमेशा नहीं कहते? बिकॉज जब n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ओनली दिस केस हमको फैक्टोरियल 3 मिलेगा। लेकिन अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सपोज दैट हमें निकालनी है वैल्यू गामा 3 बाई 2 की, तो हम इसे क्या लिखेंगे? गामा 1 प्लस 1 बाई 2। सो n गामा n के थ्रू वी विल गेट 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2। गामा 1 बाई 2 की वैल्यू हमें पता है, सो वी विल कैलकुलेट एज रूट पाई। So in this case, gamma n plus 1 is always equals to n gamma n. But specifically, when n is a positive integer, then we can say gamma n plus 1 equals to factorial n plus 1. Let's see beta function now. Beta function is defined as beta mn equals to 0 to 1 x to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1 dx. Here the limits are 0 to infinity. जैसे गामा फंक्शन में लिमिट्स थी 0 से इन्फिनेटिव, यहाँ पे लिमिट्स हैं 0 to 1. फाइनाइट लिमिट्स हैं, वहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट्स थी, वहाँ पे भी n ग्रेटर देन 0 था, और यहाँ पे भी m and n जो दोनों ही पॉजिटिव होंगे ग्रेटर देन 0। बीटा mn इक्वल्स टू बीटा n, दैट मीन्स बीटा इज अ सिमेट्रिक फंक्शन। अगर हम m और n को ऑर्डर चेंज भी कर दें, रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। Beta mn can also be observed as 0 to infinitive x to the power m minus 1, 1 plus x to the power m plus 1. अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे 1 upon 1 plus y पुट कर दें, तो we can easily find this result. इसी तरह से beta mn equals to 2 0 to pi by 2 sin to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta. अगर हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करें और x की जगह पे sin स्क्वायर थीटा पुट कर दें, then we will get this result. यहाँ पे हमने कहा था कि x की जगह पे 1/1 प्लस वाई पुट कर दें, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम लोग पुट करेंगे x के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से बीटा को हम रिलेट कर सकते हैं गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस 1 के थ्रू गामा फंक्शन से। सो बीटा m n एंड बी, इसे हम कहते भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगेन एंड अगेन वी विल यूज। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। Next property है gamma n into gamma 1 minus n is always equal to pi upon sin n pi, and the other one is based on this relation. These two relations को जब हम combine करते हैं, then we get 0 to pi by 2 sin to the power m theta cos to the power n theta equals to gamma n plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 upon 2 gamma n plus n plus 2 by 2. ये बहुत ज़्यादा यूज होती है ड्यूरिंग इंटीग्रेशन। पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, हम हमेशा इस फॉर्मूले को बहुत यूज करते हैं। So let's see some examples on beta and gamma function. Firstly, we have to evaluate gamma minus 5 by 2. Gamma minus 5 by 2 का इवेल्यूशन करना चाहते हैं। हमने अभी देखा था फॉर्मूला कि गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गामा n इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 अपॉन n। अगर हमने ये लिखा और अब हमने गामा n की जगह गामा माइनस 5 by 2 लिख लिया, तो इट कैन बी गामा माइनस 5 by 2 प्लस 1 upon n. n means minus 5 by 2, which will be minus 2 by 5 gamma minus 3 by 2. अगेन हमने इसमें सेम डेफिनेशन अप्लाई की, तब ये हो गया गामा माइनस 3 by 2 प्लस 1 माइनस 2 by 5 पहले से था, और अब अपॉन में आ गया माइनस 3 by 2। अब माइनस 3 by 2 जब ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट में, तो ये हो जाएगा 2 by 3, और यहाँ पे मिल गया गामा माइनस 1 by 2। अब इसके बाद हमको 4/15 मिल चुका है। गामा माइनस 1/2 को अगेन हमने इसी फॉर्मूले के थ्रू ओपन किया, तो हमें मिला गामा माइनस 1/2 प्लस 1 अपन माइनस 1/2, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज
minus 8 by 15, gamma minus 1 by 2 plus 1 will be gamma 1 by 2. So it will be under root pi as gamma 1 by 2 की वैल्यू हमको पता है. तो in this way we have calculated gamma minus 5 by 2. तो जब भी हमें किसी भी नेगेटिव का गामा निकालना होगा we will always follow this method. और इसमें सिर्फ हमको क्या ध्यान रखना है कि गामा n के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे और हम इजिली इवेल्युएट कर लेंगे जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी. इवेल्युएट 0 to infinitive x to the power 1 by 4 e to the power minus root x dx. अब यहाँ पे हमने जब इसको इनिशियल डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन या बीटा फंक्शन से रिलेट करने की कोशिश की तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 0 to इन्फिनेटिव है तो ये काफी क्लोज है गामा के स्टैंडर्ड डेफिनेशन के. गामा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है 0 to इन्फिनेटिव e to the power minus x to the power n minus 1 dx. यू कैन सी हियर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी की थी. तो यही डेफिनेशन हमने यूज की और हमने इसको लिख दिया इस फॉर्म में. अब जब कंपेयर किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे e to the power minus x चाहिए था वहाँ पे e to the power minus root x दिख रहा है. तो हमने इस फॉर्म में लाने के लिए लिखा पुट अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर. अगर हम अंडर रूट एक्स टू टी ले लेंगे दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर. अब हमने यहाँ से dx निकाला तो हमें मिला 2t dt. इसके करस्पॉन्डिंग अगर अपर लिमिट निकालेंगे नो चेंज इन अपर लिमिट दैट विल बी इन्फिनिटिव ओनली और लोअर लिमिट में भी कोई चेंज नहीं दैट विल बी 0. अब हमने जो इवेल्युएट करना था जो इंटीग्रल था उसे रीराइट किया x to the power 1 by 4 e to the power minus root x dx equals to 0 to infinitive x के प्लेस पे हमने पुट किया t स्क्वायर सो इट विल बी t to the power 2 by 4 e to the power minus t और dx के प्लेस पे आ गया 2t dt. इन सब रिजल्ट्स को जब कंबाइन किया तो हमें मिला या आप सॉल्व करके 1/2 लिख सकते थे और t 1 plus 1/2 will be equal to t to the power 3/2 e to the power minus t dt. तो फाइनली हमें क्या मिला 0 to infinitive e to the minus t t to the power अगर हम इसे n minus 1 की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 5/2 minus 1 dt. अब गामा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है उस डेफिनेशन को अगर यूज करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं गामा 5/2. गामा 5/2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो एन गामा एन के थ्रू. तो वी विल गेट गामा 5/2 के लिए हमने लिखा 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई. So final result is 3/4 root pi. In this way, we will calculate x to the power 1 by 4 e to the power minus root x. One thing जो हमें यहाँ पे और ऑब्जर्व करनी थी दैट वाज कि हमारा यहाँ पे एक कांस्टेंट था 2. ये 2 हमें यहाँ पे लगाना चाहिए था. अब इस 2 को अगर हम यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल हैव नाउ तो वी विल हैव ओनली 3/2 रूट पाई. तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम कंप्लीट की. बहुत सिंपल सा केस है. जब भी हमें कोई भी फंक्शन मिलेगा हमें हमेशा गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू उसे सॉल्व करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और जो भी चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे. चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम. इवेल्युएट 0 to infinitive x to the power 8 minus 1 minus x to the power 6. हम इसे सबसे पहले देखना चाहते हैं किस फॉर्म में है. तो हमने जब सबसे पहले से ऑब्जर्व किया तो हमें लगा कि 0 to इन्फिनेटिव कहीं गामा फंक्शन ना हो. लेकिन जब गामा फंक्शन की फॉर्म देखी तो उसमें e to the power minus x टाइप का टर्म आना चाहिए जो यहाँ पे कहीं नहीं है. तो ये गामा फंक्शन तो नहीं हो सकता. फिर हमने बीटा की डेफिनेशन देखी. हमने बीटा की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि बीटा mn इक्वल्स टू 0 to इन्फिनेटिव. आप देख सकते हो बीटा की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि बीटा mn कैन बी रिटन एज 0 to इन्फिनेटिव x to the power m minus 1 1 plus x to the power m plus n. तो हमने वही डेफिनेशन यूज की. इस डेफिनेशन को यूज करेंगे हम यहाँ पे. तो हमारा ये जो इंटीग्रल है 0 to इन्फिनेटिव x to the power 8 1 minus x to the power 6 1 plus x to the power 24. इसे हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख सकते हैं. ये हो गया x to the power 8 अपॉन 1 plus x to the power 24 एंड x to the power 8 एंड x to the power 6 कंबाइन हो जाएगा. तो x to the power 6 14 1 plus x to the power 24 dx लिमिट 0 to इन्फिनेटिव. अब हम इसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन से कंपेयर करना चाहते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं x to the power 9 minus 1 और नीचे लिख सकते हैं 1 plus x to the power 9 plus 15 dx.
इसी तरह से इसे लिख सकते हैं हम x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 15 प्लस 9। तो यूजिंग दिस हमें क्या मिला कि बीटा की एक वैल्यू मिल गई जिसे हम कह सकते हैं 9,15, और यहाँ से मिला बीटा 15,9। हमें पता है बीटा एक सिमेट्रिकल फंक्शन है, तो 9,15 और 15,9 बोथ आर इक्वल, सो दिस वैल्यू विल गिव यू 0। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। दिस इज जस्ट ए 2 मार्कर क्वेश्चन। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ये भी एक 2 मार्कर क्वेश्चन है, और ये भी एक 2 मार्कर क्वेश्चन है। दीज ऑल आर 2 मार्कर क्वेश्चंस। दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव द फॉलोइंग 0 to pi by 2 under root tan theta d theta and 0 to pi by 2 under root cot theta d theta। इसे हमें pi by root 2 के इक्वल शो करना है। हम सभी को पता है कि बीटा की एक डेफिनेशन है जिसमें हम कहते हैं कि बीटा एम एन इक्वल्स टू, आपने अभी देखी थी, 0 to pi by 2 के केस में निकालते हैं तो ट्वाइस 0 to pi by 2 का केस निकालते हैं हम साइन टू द पावर। आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार इसके थ्रू रिलेट कर सकते हो। ये देखिए पॉइंट नंबर 3, 0 to pi by 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा। तो वही डेफिनेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो हमको ये डेफिनेशन ऑलरेडी पता है, यहाँ पे हम उसी को यूज करेंगे। तो फर्स्टली हमने इवेल्युएट करना है 0 to pi by 2 अंडर रूट tan थीटा डी थीटा। tan थीटा को हमें पता है, हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि अंडर रूट साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा। ये आपका एक 7 मार्कर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ये। तो अब हमें ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ भी चुका है। दिस वाज इन AKTU एग्जाम इन ईयर 2018। हम इसे अब लिख सकते हैं 0 to pi by 2 साइन टू द पावर 1 by 2 थीटा cos to the power minus 1 by 2 theta d theta, or we can write it as 0 to pi by 2। हम इसे 2m minus 1 की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 by 2 plus 1 होगा, इट विल बी 3 by 2। सो इस फॉर्म में भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और फॉर्म पढ़ी है, पहले ही पढ़ी थी, जिसमें हम कहते थे कि कहीं पे भी हमको साइन टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा मिल जाए तो हमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना, दोबारा से हम इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज गामा फंक्शन ऑल्सो। तो वो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी थी? वो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि हम इसे लिख सकते हैं गामा m प्लस 1, यानी यहाँ पे p है तो p प्लस 1 बाई 2, गामा q प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2 बाई 2। तो आइदर आप इस फॉर्म में बीटा के थ्रू गामा में जाएं या फिर डायरेक्टली जाएं, यू विल हैव द सेम, क्योंकि आपको पता है कि बीटा फंक्शन ही इक्वल होता है किसके? गामा और बीटा के रिलेशन से, 2 गामा m प्लस m के। तो हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी हमें इजी लगे, वी विल रिलेट इन दैट मैनर। तो इतना हमें मिल गया। अब हमको जब ये वाली फॉर्म मिल गई है, साइन टू द पावर 1 बाई 2 थीटा कॉस टू द पावर माइनस 1 बाई 2 थीटा डी थीटा, हमें इसे एवेल्युएट करना है, तो हम इसे लिख रहे हैं गामा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, फिर गामा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 2। ये फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिला गामा 3 बाई 4। राइटिंग हियर हमें क्या मिला? गामा 3 बाई 4, सॉरी, फिर आगे 1 बाई 2 और ये सॉल्व होगा तो 1 बाई 4। नीचे में डिनोमिनेटर में मिल रहा है 1 बाई 2, 1 बाई 2 कैंसिल हो गया, गामा 2 बाई 2 इज गामा 1, गामा 1 की वैल्यू होती है 1। तो अब हमको मिल गया ये। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक और रिलेशन देखा था कि गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई। तो यूजिंग दैट रिलेशन हम यहाँ लिख सकते हैं कि गामा 1 बाई 4 गामा 1 माइनस 1 बाई 4 विल बी इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई बाई 4।
पाई अपॉन साइन पाई बाई 4 की वैल्यू निकाली, आपको पता है इट विल बी 1/√2, सो √2 पाई आ गया। √2 पाई। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे एक 2 भी था, तो उस 2 को भी हम यहाँ लगाएंगे, तो इट विल बी 2.1 अपॉन में 2 आ गया। फर्दर सॉल्व किया तो वी आर हैविंग पाई/√2। बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे सेकेंड पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट में भी हमको दिया है 0 to पाई/2 √cot थीटा। जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट हम इसे लिख सकते हैं sin⁻−1/2 थीटा cos⁻1/2 थीटा डी थीटा। एकदम फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेशन डायरेक्टली अप्लाई किया तो हमें मिला -1/2 + 1/2 गामा 1/2 + 1/2। सेम एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है जो हमें इसके प्रीवियस वाले पार्ट में मिल रहा था, यानी कि इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मिल रहा था। एकदम वही इंडेक्सेस मिल गए, गामा 1/4, गामा 3/4 और हमें मिला 2 गामा 1। तो ओवरऑल हमको क्या रिजल्ट मिल गया, अगेन पाई/√2। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दें, दिस वन इज इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2, इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें यही रिजल्ट चाहिए था, वही रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम गामा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन और बीटा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की हेल्प से इजीली रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कई बार आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंटली कई सालों से आ रहा है, अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन आता है। आप 2017 में देख सकते हो उसको, उसके बाद 2021 में भी देख सकते हो, और भी कई बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। तो इन दैट केस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो इसके प्रूफ में हमें दिखाना है कि बीटा पी क्यू, बीटा की एक डेफिनेशन आपको पता है जिसमें अपॉन की फॉर्म आती है। वो डेफिनेशन कहती है कि बीटा पी क्यू इक्वल्स टू 0 to ∞ x⁻1 p-1 अपॉन 1 + x⁻p+q। अगर हम उस डेफिनेशन को यूज करते हैं तो हमारा इंटरवल मैच नहीं होता है, इसलिए इंटरवल को दो पार्ट्स में अभी स्प्लिट किया। जब हमने इंटरवल को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख लिया तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट तो मैच हो गया, बट सेकेंड पार्ट जो 1 to ∞ जा रहा है वो मैच नहीं हुआ। तो सेकेंड पार्ट के लिए अब हमने क्या किया, इसे I1 कह देते हैं, इसे I2 कह देते हैं। तो लेट्स वर्क ऑन I2। I2 है हमारे लिए 1 to ∞ x⁻q-1 1 + x⁻p+q dx। तो हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इन्फिनेटिव तो हमें नहीं चाहिए। अब इन्फिनेटिव को रिप्लेस करना है, इन्फिनेटिव को रिप्लेस करके जीरो बनाना है, तो हमारे पास क्या मेथड होता है इन्फिनेटिव को रिप्लेस करके जीरो बनाने के लिए। सबसे इजी और सबसे मतलब कह सकते हो कि एकदम से क्लिक करने वाला जो सीन है वो हमें लगता है कि एक्स की जगह 1/y आ जाना चाहिए। अगर एक्स के प्लेस पे हम 1/y पुट कर दें तो क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले तो अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, y = 1/x के केस में 1/∞ जब लेंगे इट विल बी 0। लोअर लिमिट हो जाएगी हमारी y = 1/1 विच इज अगेन 1। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट करते तो हमें क्या मिलता, -1/y²dy। माइनस साइन आ गया, सो रिवर्स रिवर्स कर सकते हैं हम लिमिट्स को, तो हमने अपर लिमिट को लोअर के प्लेस पे और लोअर को अपर के प्लेस में लिखा, माइनस एलिमिनेट कर दिया। अब x के प्लेस पे पुट हो गया 1/y टू दी पावर q-y, यहाँ पे भी 1 + 1/y टू दी पावर p+q। dx के प्लेस पे आ गया 1/y² dy। अब जितने भी टर्म्स हैं सभी को कलेक्ट करते हैं 1/1। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 1/y टू द पावर q-1 था I2 में, लिमिट हो चुकी है हमारी 0 to 1। तो 1/y को हम लिख सकते हैं y टू द पावर 1 - q, तो हमने लिख दिया y टू द पावर 1 - q। फिर हमने देखा y² अपॉन में था, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2
इसी तरह से 1/1 प्लस वाई है, एलसीएम ले लें तो y प्लस 1 और फिर y टू द पावर p प्लस क्यू, तो y टू द पावर p प्लस क्यू पर आ गया और नीचे हो गया 1 प्लस वाई टू द पावर p प्लस क्यू dy। इतना हमें मिल गया, सारे चीजें हम कंबाइन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं फाइनली y सॉल्व होके क्या होता है। y टू द पावर -1 माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू, ये फॉर्म हमें मिल गई, आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमने देखी, यहाँ पे भी p था तो यहाँ पे भी p है ये, और ये भी p है, सॉरी। तो ये सारा p के फॉर्म में चल रहा है अभी, q की फॉर्म अभी तक हमारे पास नहीं आई है। देखते हैं आगे क्या हम q ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। तो अब हमारा इतना आ गया है रिजल्ट, 1 प्लस वाई टू द पावर p प्लस क्यू। ठीक है, अब हमने देखा तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो अब हमें क्या मिला, 0 to 1 वाई टू द पावर q-1 1 प्लस वाई टू द पावर p प्लस क्यू डी वाई। तो ये फॉर्म तो हमें मिल गई, लेकिन हमें चाहिए था x के फॉर्म में और रिजल्ट आया है y के फॉर्म में। हमें पता है इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, अगर वेरिएबल को रिप्लेस कर दें रिजल्ट में कभी कोई डिफरेंस नहीं आता। तो रिप्लेसिंग y बाई x इन I2, अगर हम y को x से रिप्लेस कर दें तो I2 अब क्या हो जाएगा, 0 to 1 x टू द पावर q-1 1 प्लस x टू द पावर p प्लस क्यू डी एक्स। फिर से देख लीजिए एक बार क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने इंटीग्रल को लिमिट्स में दो पार्ट में स्प्लिट किया, 0 से 1 1 टू इन्फिनेटिव x टू द पावर p-1 दोनों में ही रहेगा। अब स्प्लिट करने के बाद I1 तो हमें इससे मैच करता हुआ मिल गया था, ये वाला पार्ट नहीं मिला था, तो हमने इस इंटीग्रल को आगे लेके चले। यहाँ पे हमने x में सब्सटीट्यूट किया, x की जगह 1/y, लिमिट्स चेंज हो गई हमारी 0 and 1। अब x के प्लेस पे 1/y पुट कर दिया, पावर p-1। आगे हमने y की सारी पावर्स को कलेक्ट किया, जो भी सॉल्व किया उसके बाद कैंसिल हो गया, -p प्लस p, सिर्फ बचा q-1, तो हमें I2 मिल गया। अब अगेन हम इन दोनों रिलेशंस को I1 एंड I2 को कंबाइन करेंगे। नाउ बीटा पी क्यू क्या था, बीटा पी क्यू था, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, इट वॉज I1 प्लस I2। तो ये I1 प्लस I2 था, तो हमने वैल्यूज यहाँ पे रख दी। I1 की वैल्यू तो 0 to 1 x टू द पावर p-1 1 प्लस x टू द पावर p प्लस क्यू, और I2 की वैल्यू आ गई 0 to 1 x टू द पावर q-1 dx अपॉन 1 प्लस x टू द पावर p प्लस क्यू। इन दोनों रिजल्ट्स को जब कंबाइन करके लिखेंगे, जब इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 to 1 x टू द पावर p-1 प्लस x टू द पावर q-1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर p प्लस q dx। In this way we have proved our result। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी भी है, थोड़ा सा ध्यान देके करना है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए एक बार, अगर कोई भी डाउट है आपको तो क्लियर हो जाएगा। आपने सिंपली 0 to इन्फिनेटिव बीटा की जो डेफिनेशन है, जो x इक्वल्स टू 1/1 प्लस वाई पुट करके आई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस डेफिनेशन को लिया, इस लिमिट को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, जो 0 से इन्फिनेटिव का इंटरवल था इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनेटिव। इंटीग्रल की डेफिनेशन को स्प्लिट कर दिया। I1 हमारा तभी मैच कर गया, I2 मैच नहीं किया, तो I2 पे आगे हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, x इक्वल्स टू 1/y। इस ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद y की पावर्स को कलेक्ट किया और 1 प्लस वाई की पावर्स को कलेक्ट किया, हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट दिखने लगा। वेरिएबल चेंज था इसलिए हमने y को रिप्लेस किया बाय x एंड वी हैव गॉट आवर रिजल्ट। तो इस तरह से बीटा और गामा फंक्शन में जो मेन टाइप्स के क्वेश्चन है, हमने हर तरह के क्वेश्चंस देख लिए हैं। That's all for beta and gamma function. There are some references. Thank you, everyone.